Good afternoon, everyone. Let's start with third anthropological theory, functionalism, given by Bronislaw Malinowski. So, the anthropological theories, they are an attempt to understand how culture evolved and progressed throughout the history. And functionalism is third such attempt. So, functionalism, as the name says it, is about the various functions performed by various organs of a society. So it's a interrelationship between various aspects of society and the functions that are performed by them. तो जैसे किसी भी सोसाइटी की बात करें तो उसके अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं या उसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लाइक उसमें रिचुअल्स है, देन उसका नॉलेज सिस्टम है, बिलीफ है, एक आउटलुक है, देन प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो सब के सब, इवन सुपरस्टिशन, ये सब जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं किसी भी कल्चर के। और यहाँ पे ऑल दीज ऑर्गन्स दे आर नॉट स्टैंड अलोन, वो उन सब का कुछ न कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है, एंड दैट्स व्हाट दिस functionalism theory is. Now let's have a look at historical context. So we have seen the earlier two, classical evolutionism and diffusionism, and both of them they try to explain how culture evolved through historical narratives. जैसे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, द आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है कि कल्चर जो है it went through three stages from savagery to barbarism to civilization, and at civilization lies the European white European society. And whereas diffusionism it said कि culture जो है it originated at a single area, a single point of origin. जैसे अगर ब्रिटिश diffusionist स्कूल की बात करें, so the Egypt was the center, and यहाँ से दूसरी जगह पे culture spread हुआ. फिर यही अगर जर्मन एंड अमेरिकन स्कूल की बात करें, सो दे टॉक अबाउट मल्टीपल सेंटर्स, एंड अगेन द कोर आइडिया इज सिमिलर कि किसी जगह से ओरिजिन हो गए जो कल्चर जो है ये आउटवर्ड डिफ्यूज हुआ थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ कॉन्टैक्ट. बट फंक्शनलिज्म जो है इट टॉक अबाउट अ टोटली डिफरेंट पैराडाइम. Not only it refuted the earlier historical narratives, but it also provided a new lens to look at culture. So there might be something that all the cultures possess, irrespective of where they are situated. So that particular lens, what lies inside any particular culture, so that knowledge was not there. क्योंकि आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड डिफ्यूजनिज्म दोनों की बात करें, सो दोनों के अंदर जो है जो मोस्टली जो सेकेंड हैंड डेटा था, then they analyze, they employ their cross comparisons, and then arrive at their own conclusion, own observations. But एक पर्टिकुलर कल्चर में क्या चलता है, द इम्पॉन्ट्रेबिलिया, जो अभी आगे देखेंगे इसी के अंदर. इम्पॉन्ट्रेबिलिया मीन्स द सटल एंड माइन्यूट डे टू डे डिटेल्स. सो दोज डिटेल्स वो उन्हीं के साथ रह के हो सकती है, एंड that's why Malinowski, he is known as the father of participant observation, a father of fieldwork anthropology. So that's a historical contrast. And then the anthropological turn. So he was employed during the First World War in 1915, but he traveled to Trobriand Island. But because of wartime restriction, he stayed there for several years, around 7 years, and then he in 1922 he published his ethnography, the first ethnographic on the Trobriand Islander, the Argonauts of Western Pacific. So that's why he is known as the father of fieldwork anthropology, or father of modern fieldwork. And then he employed this method of participant observation, जो आज की anthropology के लिए, किसी भी ethnographic research के लिए, it stands as an important cornerstone. So he learned the local language, Kilivila, and he lived among them, participated in the daily life, and recorded everything about them. That's what he called imponderability of actual life. कि जो माइन्यूट सटल डिटेल्स जो हैं, जो
एक वन टाइम विजिट या ऑफ इन अकेजनल और इनफ्रीक्वेंट विजिट से जो चीज नहीं मिल सकती है, वो चीज कि आखिर में उनके अंदर क्या चल रहा है, what lies at the basis of everything, all the cultural practices, the whole background context cannot be figured out without actual living among them, without learning their language and living their own life. So he not only devised this cornerstone of fieldwork anthropology, but he also provided a new lens to look at every culture, the cultural relativism. So ये एक और जो आइडिया जो है, ये उसने दिया है कि हर एक कल्चर जो है उस वो अपने आप में इट्स अ लोकल एडेप्टेशन, a local solid adaptation. So even if हम देखते हैं कि बहुत सारे सुपरस्टिशन जो है बहुत साल से चल रहे हैं, लोग जो है बहुत कहने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, दे डू नॉट गेट rid ऑफ देम. सो वो इसीलिए बिकॉज दो सुपरस्टिशन जो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए या फिर एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव के लिए की तरफ से दे माइट सीम इनसेंसिबल, इनसिग्निफिकेंट, बट उनके लिए दे आर द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्योंकि वही लोकल अडेप्टेशन है और उसी की वजह से उनकी सोसाइटी जो है इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है. नाउ दोज व्हाट यू सी, the superstition, the cultural belief, the cultural practices or rituals, they might be symbolic, but underneath them there lies something else. और वो context पता करने के लिए you need to live among them, like they live among them as a member of that particular community, and that's what Malinowski did. And फिर ये method तो है ही participant observation. So by living with them, he get to know how culture functions from inside, and that he called imponderabilia of actual life. ये टर्म याद रखना, आपके यूपीएससी के लिए बहुत काम आएगी. And then his the major ethnographic work on Trobriand Island, Argonaut of the Western Pacific, जो 7 साल ट्रोब्रियन आइलैंड पे रहने के बाद 1922 में पब्लिश किया. एंड इस बुक के अंदर, क्योंकि पढ़ी है तो इस बुक के अंदर काफी कुछ दे रखा है उनके बारे में, बट जो हाईलाइट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए हाईलाइट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पे पूछा है पोलरिंग पे. सो ये इस एक्सचेंज के अलावा उनके जो भी डे टू डे लाइफ है, उनकी फिशिंग है, उनकी गार्डनिंग वगैरह, उन सब के बारे में दिया हुआ है. सो नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन टू द कोर प्रिंसिपल, और ये कोलरिंग के बारे में आपको आगे बताता हूँ. सो जो फंक्शनलिज्म है, इट सीज की जो एनी सोसाइटी जो है, इट इज लाइक इन होल बॉडी, एन ऑर्गेनिक इंडिविजुअल, और उसके जितनी भी ऑर्गन्स हैं दे सर्व एन इंडिविजुअल फंक्शंस, जो जिस चीज को ऑर्गेनिक एनालॉजी कहा गया है. सो जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, लिम्स हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, वैसे ही जो ऑर्गेनिक एनालॉजी है ऑफ सोसाइटी, इट व्यूज दैट सोसाइटी possess मल्टीपल ऑर्गन्स एंड ऑल ऑफ देम सर्व डिफरेंट फंक्शंस. जितने भी कल्चर के ऑर्गन्स हैं, दे मेक अप टुगेदर to a fully and sound working cultural practice. Now back to this introduction. So 3 fundamental principles हैं. First, culture is an integrated system, जिसमें बहुत सारे organs जो है, multiple organs, they function together in an interrelated system. Then every cultural element, यानी जिस तरह से हमारी बॉडी में से हर एक organ है, वैसे ही हर एक एलिमेंट, हर एक कल्चरल टाइप जो है या कल्चरल प्रैक्टिस जो है, इट हैज अ सेपरेट फंक्शन. एंड देन कल्चर सर्विंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल. फिर ये है कि दोनों चीजें, कल्चर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, देन ईच कल्चरल एलिमेंट हैज अ सेपरेट फंक्शन, एंड फाइनली कल्चर जो है उसका मेन काम जो है, इट इज टू सर्व द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, विच इन a broader context, it is about survival and adaptation. So first, culture as an integrated whole. So यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि Malinowski, he viewed culture as an organic system, जो अभी बता दिया है, and that's what organic analogy is. जिस तरह organs होते हैं,
वैसे ही कल्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. Whatever you see it, kinship, religion, economy, law, cultural practices, knowledge system, belief, superstition, all of them, they play a role in maintaining this whole structure. Then this example है the coolaring. So जो coolaring जो है, it is an exchange system, a ceremonial या symbolic exchange system. Now जैसे ये बुक पढ़ी है तो ये आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि this particular exchange system, it is less about trade and more about diplomacy, relationship building, rapid building and prestige. ये तीन चीजें. Now होता क्या है that जितने भी जो आइलैंड्स हैं, Trobriand and the partner islands, they are situated in a ring fashion. So what they do, कि the people from the Trobriand island और उनमें से जितने भी partner island हैं सबके अंदर, they ceremonially exchange two commodities. First, Solava and Mwali. Now ये जो दोनों commodities हैं, they are made up of shells, she sells. So अब ये है कि this commodity, it is exchanged in clockwise direction and Mawali, it is exchanged in counterclockwise direction. Now what happens is, जैसे जो ancestors थे, especially I talk about the ancestors of Trobriand island, so they devise a really an intelligent system, intelligent and wise system to know what threat they may hold among themselves, especially from their own fellow community. क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी सोसाइटी की जो जो नीड होती है, बेसिक नीड, जो बहुत ही ब्रॉडर एंड डीपर नीड, इट इज द सर्वाइवल नीड. एंड सर्वाइवल के साथ ही इट्स इट्स काउंटर पार्ट अडेप्टेशन, बोथ वर्क हैंड इन हैंड. सर्वाइवल होगा तो सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन भी जरूरी है, द फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ जो अदर थ्रेट्स हैं, द प्रेडिक्टेबल थ्रेट्स, कि जो जैसे मरीन थ्रेट्स का बोल दिया, या फिर जो क्लाइमेटिक थ्रेट्स जो हैं, अब वो चीज़ें प्रेडिक्टेबल है या फिर इन अदर सेंस दे आर लेस एम्बिगुअस. कि अगर जैसे अगर कहीं पे फ्लड आ गई है, तो अब वो फ्लड जो है इट इज इम्पार्शियल. कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को वो बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी, या कुछ लोगों के साथ वो एक अलग तरीके का गेम खेलेगी, कि कुछ लोगों के साथ उसकी जो पॉलिटिकल करेंसी जो है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी. सो जितने भी जो ह्यूमन पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी गेम होते हैं, सो वो सारे गेम जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स में नहीं होते. सो वो एम्बिग्विटी वहां पे बिल्कुल नहीं है. ठीक है, फ्लड आएगी या फिर कोई टॉर्नेडो होगा, कोई स्टॉर्म होगा किस तरह का, या फिर जो डीप फिशिंग के लिए जा रहे हैं वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. सो वो सब चीजें जो हैं वो उनमें फर्स्ट एक चीज क्लियर है कि दैट्स अ क्लियर डेंजर, और उनके लिए उनके जितने भी डिवाइस अडेप्टेशन हैं वो वर्क करेंगे. बट व्हाट अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी? अब यहाँ पे एम्बिग्विटी बहुत रहती है. सो ऐसी कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई एनमाइटी ना रहे, तो उसके लिए क्या है, दिस सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम, कि पीपल जो है, जस्ट अज्यूम कि हम ट्रोब्रियन आइलैंड की बात कर रहे हैं. अब यहाँ से दे बिल्ड देयर कैनोस, अपनी जो बोट है वो प्रिपेयर करते हैं, एंड देन दे एक्सचेंज दीज गिफ्ट्स इन अ क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज सिस्टम. फिर यहाँ पे दे मेक यूज ऑफ डिप्लोमेसी, दे बिल्ड देयर रैपिड, एंड देन फाइनली व्हेन दे कम होम with with success, they gain a lot of prestige. So इससे क्या होता है, अगर कहीं पे एनमाइटी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरह का अगर उनके अंदर थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड,
तो वो सब चीजें उनके सामने आ जाती है। और फिर बाकी उसके साथ जितने भी फंक्शंस हैं, इकोनॉमिक फंक्शन हो गए, रिलीजियस सोशल फंक्शंस हो गए, वो तो आप खुद समझ रहे हैं कि जो अल्टीमेट जो चीज उनके पास है कि जिस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं उस कम्युनिटी में कोई किसी तरह का थ्रेट नहीं, दे शुड लिव इन हार्मनी। सो ये एक हार्मनी मेंटेनेंस के लिए है और उसमें ये सब चीजें यूज होती है। ट्रेड का रोल यहाँ पे कम है। सो इसके बारे में ये दिया हुआ है कि किस तरह से culture function in that way. So you can see here it looked like a trade system, but it had multiple cultural layers. First, the economic function. कि जो कूलर ऑब्जेक्ट्स हैं सोलवा एंड वॉली, बोथ ऑफ देम दे डिड नॉट हैड एनी कमर्शियल वैल्यू, बट देन उनके साथ अदर ट्रेड रिलेशनशिप जो है दे वर आल्सो अकोमोडेटेड। सो वो ट्रेड रिलेशनशिप कब होंगे जब उनके बीच में किसी तरह की एनमाइटी नहीं रहेगी। सो आप लोगों ने ये चीज अभी भी देखी होगी इवन इन प्रेजेंट टाइम कि जैसे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं दे मेक विजिट्स टू वेरियस कंट्रीज। सो यहाँ पे दोज विजिट्स आर क्वाइट कॉस्टली और साथ में दे आर रिस्की एज वेल कि आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं तो जितना भी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है it is way higher than any other group of corporate people कि आप सिर्फ यहाँ पे you are not travel an individual capacity, you are risking the prestige of any country। और साथ में जो सिक्योरिटी नाइटमेयर जो है, सिक्योरिटी रिस्क जो है वो भी बहुत होता है। फिर भी जो जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट हैं दे मेक द जर्नी, ये उसका प्राइमरी पर्पस यही है। वो जो बेसिक आइडिया जो है वो इस कूलरिंग जैसा ही है कि यू विजिट पीपल एंड देन कुछ आपके बीच में कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अगर फ्रिक्शंस हैं, या इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड और यू वांट टू लेवरेज द क्लोज रिलेशनशिप, सो दैट्स अ काइंड ऑफ डिप्लोमेसी कि फॉर वट एवर पर्पज इट इज यू नीड टू मेक द जर्नी। सो यही आइडिया कूलरिंग का है। Then the second social function कि it help make lifelong partnerships and alliances। So वो बहुत जरूरी है especially when you are living among different island communities। so ऐसे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से ना सिर्फ एक का बल्कि सबकी जो सिक्योरिटी है या सर्वाइवल जो है इट कैन कम अंडर थ्रेट। फिर रिलीजियस फंक्शंस जो है ये कि how their own belief system, like the rituals, the superstition they employ before making the journey। so उसमें वो सब चीजें जो हैं they are performed and then it makes use of those symbolic elements। so ultimately जब जो anthropological theories complete हो जाएगी then you will come to realize the value of symbols। so that's why जैसे अगर इंडियन फ्लैग की बात करें, इंडियन नेशनल फ्लैग या एंथम जो है उनकी बात करें, या फिर जो पुलिस की वर्दी है उन सब की बात करें, सो जो अल्टीमेट जो पर्पस है, द सिंबॉलिक पर्पस, वो आपको लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी नहीं, दूसरी अदर थियरीज में भी समझ में आएगा कि वी लिव इन अ सिंबॉलिक वर्ल्ड। अदरवाइज रिलीजियस मोस्टली वर्क्स ऑन अ प्लेसबो इफेक्ट। सो प्लेसबो इफेक्ट होता है कि कोई चीज आपके फेवर में नहीं है। इट मे बी अ फिजिकल इलनेस, इट मे बी अ मेंटल इलनेस, इट मे बी अ फाइनेंशियल और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन in any other walk of your life। So to make that happen, you need to make the move। Now, sometime when you are up against the wall, when you are up against, or when you are entering a deep water, so usme you need that leap of faith। It's not that everybody is capable of it। होता है कई बार कि यू आर इन सच अ सिचुएशन कि यू नीड दैट फेथ, बट दैट फेथ डज नॉट कम ऑन इट्स ओन। सो वो जो पुश जो है वो मिलता है उस प्लेसबो से, एंड दैट प्लेसबो इज सिंबॉलिक। और दैट्स व्हाट दैट
gap is filled by the religious or the religious function and functionaries. फिर the last political function, तो ये जो लीडरशिप रोल्स जो हैं, political function जो है, ये भी आपको समझा दिया था कि किस तरह से कूलर रिंग जो है, इट इज अ टोटल मल्टी फैक्टोरियल ऑर्गेनाइजेशन वर्क, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है दे वर्क टुगेदर टू कीप दैट सिस्टम इंटैक्ट. नाउ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फंक्शनलिज्म इज द फंक्शनल यूनिटी ऑफ कल्चरल ट्रेड्स, कि जितने भी कल्चरल ट्रेड्स हैं, कल्चरल एलिमेंट है, सबके कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई रोल है. सो दूसरे लोगों के लिए all those belief system, all those rituals may sound irrational, but then all of those cultural element, they have something to do with that particular culture, even if it is about maintaining stability or continuity or the efficiency. कुल मिला के एक कल्चर के लिए जो जरूरी चीजें होती है सर्वाइवल के लिए, सो दे मे बी कॉन्क्रीट थिंग्स, the things that work, and then they may be symbolic, whichever it is. अगर उस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है एंड देन एग्जिस्ट करने के बाद दैट सोसाइटी इज प्रॉस्परिंग, then that symbolic world is authentic one, and that symbolic world cannot be questioned. I say it because अभी आपको समझाया रिलीजन का जो प्लेसबो इफेक्ट है. सो ऐसे हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं कि जो रिलीजियस चार्म्स हैं, मैजिक है, या जितने भी एमुलेट्स हैं, या इवन जो हम जो घर में पूजा करते हैं, जो गॉड का कंसेप्ट है, तो हमारे पास उसमें किसी के भी कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है. सो इट्स अ टोटल सिंबॉलिक वर्ल्ड. पर फिर भी वो सिंबॉलिक वर्ल्ड काम करता है. सो अगर वो काम कर रहा है तो पीपल विल स्टे विद इट. इट्स लाइक there is a whole lot of world that we do not know of. लेकिन अगर कोई चीज का हमें आइडिया नहीं है, then we cannot shrug it off, we cannot shake it off. जैसे जैसे अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें या कॉस्मोलॉजी की बात करें, तो यूनिवर्स जो है बहुत बड़ा है. देन वी डू नॉट नो कि हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर. फिर हमें ये भी नहीं पता है कि इफ देयर इज अ मिरर यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स, देन हमें ये भी नहीं पता है कि इस यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ पॉसिबल है या नहीं है. आइदर वी आर अलोन और वी आर नॉट. दोनों ही पॉसिबिलिटी जो है, दोनों ही काफी नर्व शैटरिंग है. सो ये सब चीजें जो हैं, ये जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, सो उन सब के लिए, उन सब की जगह भरने के लिए देयर इज अ सिंबॉलिक वर्ल्ड आउट देयर. और किसी भी सोसाइटी में इफ सिंबॉलिक वर्ल्ड इज वर्किंग, और वो पता कैसे चलता है कि इफ दैट सोसाइटी इज स्टेबल. सो इफ इट इज स्टेबल, तो फिर वो चीज जो है, दैट सिंबॉलिक थिंग, इट इज नॉट इरेशनल, स्पेशली फॉर दैट कल्चर इट इज नॉट. फिर एग्जाम्पल जैसे हैं द मिथ्स इन ट्रोब्रियन सोसाइटी, और जो हर एक सोसाइटी के अंदर होती है, जितने भी मिथ होते हैं, वो सबके एक वही द सिंबॉलिक प्लेसबो इफेक्ट होता है. सो जो प्रॉपर बिहेवियर है, इवन जो हमारी सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी, हिंदू कल्चर, उसके अंदर भी कुछ बहुत सारे मिथ्स हैं, जो प्रॉपर सोशल बिहेवियर के लिए बहुत सारे सुपरस्टिशन है कि ये होना चाहिए. एंड देन वी हैव अ होल लॉट ऑफ डिक्शनरी फॉर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेटिंग ऑल दोज टाबूज. टाबूज हर सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. टाबूज मीन्स रेस्ट्रिक्शंस कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए. सो उसके लिए भी है ही है. जैसे आपने कंसैंग्विनिटी का देखा होगा. कंसैंग्विनिटी मीन्स to marry the blood relative. So consanguinity about procreating with the blood relative. क्योंकि सिर्फ शादी करने से, अगर शादी करे बच्चे नहीं करे तो वो चीज लीथल नहीं है. बट अगर बच्चे हो जाते हैं, then that procreation, the very act, it is lethal in some senses. So now अब ये होता है कि आज हमारे पास जो जितनी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैं, एंड देन इट्स पैराफर्नेलिया, जेनेटिक्स, उससे हमें पता चला है कि किस तरह से ये जो है
the consanguinity or consanguineous marriages, they will have lethal consequences. लेकिन आज के हजारों साल पहले our ancestors did not know this. लेकिन फिर भी they created this taboo, this restriction of marrying among close relative because they have seen it. सो जितने भी बिहेवियर है आज हमारे पास उन सब के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन अर्लियर वो सब जो है, जितने भी टाबूज जो हैं, they were there, they were put in to lessen the effect of those negative consequences. Then the legal justifications are there, क्योंकि जो सिंपल सोसाइटीज जो होती है, मॉरल कोड, सोशल पॉलिटिकल कोड जो है, ऑल ऑफ देम they are merge into one another, and most of them they are mythological in nature. And finally किसी भी political या social system जो है उसका ultimate role जो है, it is about social cohesion. Now the third principle, the theory of needs. So Malinowski, he said कि जो भी society जो होती है, it is there, कोई भी culture जो है, it is there to serve the needs of individual. क्योंकि अगर कल्चर ही सर्व नहीं करेगा तो जो इंडिविजुअल हैं दे विल डिटैच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कल्चर. जैसे इवन हम अपने इंडियन कल्चर की बात करें तो जितने भी इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक मैरिज इंस्टीट्यूशन हो गया, देन जितनी भी सेरेमनीज जो हैं, एंड ये कह सकते हैं कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ हमारे इंडियन कल्चर या सब जितने भी वर्ल्ड के कल्चर्स हैं, सबके अंदर इलेबरेट सेरेमनीज हैं एंड द मीनिंग एंड सिंबॉलिक वर्ल्ड है. सो हमारे कल्चर में जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है. लाइक मैरिज है, इट इज अबाउट प्रोक्रिएशन, बट इट इज क्वाइट रेगुलेटेड. फिर जो अभी आपको कंसैंग्युनिटी का बताया, तो हमारे यहाँ भी जो गोत्र सिस्टम है, जो कास्ट एंड गोत्र सिस्टम है, सो इट इज स्पेसिफिकली टू अवॉइड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंसैंग्युनिटी. कि अगर जो गोत्र जो है वो क्या होता है, वो हमारे सेकेंडरी किन्स हैं, हमारा ही किनशिप नेटवर्क है, हमारा ही ब्लड नेटवर्क है. तो अगर उसी के अंदर शादी करेंगे, देन जो लीथल जीन्स है, जो रिसेसिव जीन्स जो हैं, दे विल बिकम होमोजाइगस. और वही है, होमोजाइगोसिटी आ जाएगी अगर अगर दोनों ही जीन्स फ्रॉम मदर एंड फादर दोनों के अगर रिसेसिव होंगे, देन it will lead to the build up of genetic load, and ultimately यही genetic load जो है down the line it will create harmful consequences. So उसको avoid करने के लिए ये system लाया गया, but ultimately ये जो system है ये marriage को avoid करने के लिए नहीं है, it is to avoid the harmful effects of consanguinity. So similarly यहाँ भी इसी theory of need में कि culture जो है it will serve the human needs. अब वो human needs कौन सी है? First, the primary needs like food, water, shelter, reproduction. Then the instrumental needs are there. कि to serve these needs, we need an elaborate system, an organized and flexible system that can withstand the vagaries of time. So उसके लिए ऐसा एक system जो है हमारे पास, the family system, the economic institutions, the political structure. क्योंकि we do not need to create same thing all the time. We can make the changes, we can improvise it. Otherwise we do not need to make those fresh changes all the time. So that's why we have many institutions that they are here for thousands of years. जैसे शादी की बात करें, the marriage as an institution, the political institution, जो इकोनॉमी की बात करते हैं, जो ट्रेड रिलेशंस हैं, द ट्रेड मैकेनिज्म्स हैं, करेंसी हैं, सो या फिर एजुकेशन है, ये सब जो है बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं. बस ये होता है कि हर आने वाले डायनामिज्म के अकॉर्डिंग, हर आने वाले चेंजेस को दे ट्राई टू एब्जॉर्ब इट एंड मेक द नेसेसरी मॉडिफिकेशंस. तो कस्टमाइजेशन जो है, कस्टमाइजेशन या इम्प्रोवाइजेशन, वो चलता रहता है, बट अदरवाइज द कोर स्ट्रक्चर इट रिमेन्स इंटैक्ट. सो यही वो इंस्टीट्यूशंस हैं, या यही वो स्कैफोल्ड्स हैं, यही वो पिलर्स हैं जिन पे सोसाइटी टिकी हुई रहती है. द फैमिली सिस्टम, द इकोनॉमिक सिस्टम, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द लीगल वंस. एंड द थर्ड काइंड ऑफ नीड, द इंटीग्रेटिव नीड्स. सो इंटीग्रेटिव नीड,
it is, you can call it at broader level, the symbolic world. Now I have told you the meaning, or you can say the significance of the symbolic world. क्योंकि ना शुरू से जैसे जो मैंने इतने टाइम से एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों को पढ़ते पढ़ते ये चीज पाई है कि what we have, we Homo sapiens, we have a different kind of consciousness. No, the many other species are conscious, but our consciousness, it is quite different. वो कैसे? Our consciousness, it works on two things: perception and cognition. Now, perception means how you perceive something. Now, perception से क्या होता है? I have figured it out. I have come to this realization कि our perception is quite fluid. Now, we may be housed in a concrete body. Concrete means not made up of cement. Concrete means something which can be touched. So, जो English के अंदर जो concrete noun होता है, उसी तरह से concrete thing, something which can be touched with the senses. So, our body is concrete and solid, but our consciousness, it is fluid. यही देखा होगा कि इसी वजह से तो we, the tiny creatures, we can roll out a huge ship. In the same way, एक पायलट जो होता है वो अपने से 1000 times bigger structure को he can fly. यही ट्रेन के अंदर होता है, यही शिप्स के अंदर होता है, और यही हर एक जितने भी टेक्नोलॉजी हैं सबके अंदर यही चीज है. That how we have come to master all these technologies just because we have the fluid perception, the fluid consciousness. So जब आप कार सीखते हैं, आप में से बहुत लोगों को आती होगी, या सबसे पहले साइकिल सीखी थी, उसके बाद मोटरसाइकिल सीखी, उसके बाद कार. सो इन सब में आपने ये चीज देखा होगा कि it is less about the mechanical principle and more about perception. You need to take that shape. कार चलाने के लिए you need to take the shape of a car. आपको वो चीज वहीं महसूस होनी चाहिए कि you are driving. It's not that you are not pulling a mechanical object. You are driving it. You are that object. सिमिलरली यही चीज होता है जो एरोप्लेन जो उड़ाते हैं, उनको भी वही है, दैट टेक द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट. यही शिप वाले को होता है, दोज हु हैम द शिप्स, हैम जो चलाते हैं, दोज हु स्टीयर द शिप. सो इतने बड़े शिप को इसी तरह चलाते हैं बिकॉज दे टेक देयर कॉन्शियसनेस, इट टेक द शेप ऑफ दैट फ्लूइड. यही सिमिलर जो फाइटर पायलट्स होते हैं, दोज that run around Mach 1 or 2 speed. Now you can only imagine to fly at this particular speed. So वो कब होगा? When you take the shape of that machine, that mechanical object. So यहाँ पे भी वही symbolic world जो है ये important हो जाता है, because our consciousness, it is always up there to take the shape of what is there. Our minds have always grappled with these questions. शुरू से ही आप लोगों ने वो जितने भी प्री हिस्टोरिक कल्चर्स हैं, फ्रॉम पेलियोलिथिक टू द आयरन एज, अगर वो सारे वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पेलियोलिथिक के टाइम से ही जो द बैरियल्स जो हैं दे स्टार्टेड. फिर उसके बाद मेगालिथिक बैरियल्स भी आ गए, इलैबोरेट बैरियल्स आ गए. सो इन जब सब बैरियल्स में यही चीज जो है कि दैट पीपल बिलीव दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, और एटलीस्ट दे ग्रैपल विद दिस क्वेश्चन कि देयर माइट बी समथिंग आफ्टर इट. देन पीपल ग्रैपल विद देयर ओन ड्रीम्स. और वो उस टाइम नहीं, हम आज भी जो है we are not sure about how dreams work and why are they there.
एंड किस तरह से जो डे टू डे इवेंट्स हैं हमारे दिन भर में जो भी देखते हैं उन सब की एक अलग ही स्टोरी प्रिपेयर होके हमारे ड्रीम्स में क्यों आती है. सो ये जितना भी स्ट्रक्चर है इट इज दैट ब्लैंक थिंग लाइक द डार्क यूनिवर्स, द डार्क एनर्जी, द डार्क मास. सो वही सेम जो सिंबॉलिक वर्ल्ड है उसको अब हमारा दिमाग जो हमारी कॉन्शियस जो है कॉन्शियसनेस जो है इट वांट्स टू टेक दैट शेप. लेकिन जब तक हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है यू नो समथिंग हैज टू यू नो टेक take the shape or something has to take the responsibility, something has to fill in. और वो सब जो चीज है it is filled by the symbolic world. You might not get my point. It's this thing. अगर पानी है और उसको बर्तन में लाया जाए तो पानी जो है वो बर्तन का शेप ले लेगा. बट अब ये समझिए कि बर्तन बहुत बड़ा है और उसको शेप लेना है. तो अगर कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो ड्रीम्स जो है वो हम आज भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे जो साइकोलॉजिकल स्पेयर में क्या चलता है वो आज भी हमें पता नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है वो आज भी हमें पता नहीं है, गॉड है कि नहीं है वो भी नहीं पता है. सो ये जितने भी जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं सो वो नहीं पता है. सो ऐसे में इफ वी keep latch on to that, if we do not detach ourselves from those questions, then those questions will make our life hell. So ऐसे में उस चीज को to give a respectable shape or respectable order, what we do, we latch them onto something, a symbolic word. कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्या है क्या नहीं है, all the idea it has been given to God. So God is that symbolic world कि हमें नहीं समझ में आ रहा है तो सबका सब वहां रख दिया है. जैसे यूनिवर्स के अंदर जो है only 5% is the visible and observable universe, rest 95% is the dark universe, the dark mass. So जो चीज हमें समझ में नहीं आई हम सब ने उसको क्लब अप करके we gave it the name of darkness. So that's how symbolic world works. और यही यहाँ पे integrative needs का है. Then religion, language, ritual, education, the moral sphere, the spiritual affair, the metaphysical, all of them, they are just the different compartments, the different rooms inside that big symbolic world. तो जितने भी हमारी जो नीड्स हैं जो फुलफिल नहीं हो रही है वी लैच देम ऑन टू दैट सिंबॉलिक वर्ल्ड एंड देन वी कंपार्टमेंटलाइज देम. सो रिलीजन हो गया, रिचुअल्स हो गया, सुपरस्टिशन है, बिलीव्स हैं, राइट्स हैं, वो सब जो है दे प्रोवाइड द इमोशनल कंफर्ट एंड रीइंफोर्स यूनिटी, द प्लेसबो इफेक्ट, where something that grapples, something that comes up in our mind, something that our consciousness want urge us to bring it out. कई बार होता है दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है देन वी वांट टू स्पिट इट आउट. सो दैट इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन दैट आवर साइके नीड्स टू डिलीवर. आवर माइंड नीड्स टू एक्सप्रेस दैट थिंग जस्ट बिकॉज इट हैज बिकम ओवरवेलमिंग फॉर आवर कॉन्शियसनेस टू हैंडल. होता क्या है हमारे दिमाग के अंदर द विजिबल, द सबकॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस, 3 levels of mind, and it's nothing but it happens with the time. The integration of information plus time, and that's how different categories of memories are undertaken. And it is also about the actions. कौन से काम जरूरी है, कौन से काम रिपीटेटिव है, एंड कौन से काम जो है they need something else. So उसके बेसिस पे अलग अलग मेमोरीज है. नाउ क्या होता है सब कई बार जो सबकॉन्शियस माइंड जो है इट accumulate a lot of information for one reason or another. कोई आइडिया बहुत पसंद आ गया होगा या something might have attracted your attention. कोई आइडिया हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई पर्सन हो गया, कोई बिहेवियर हो गया, कोई आर्ट हो गया, जो भी है, कोई कंसेप्ट हो गया. सो वो जब एक टाइम पे आपका दिमाग जो है उस चीज को लेके बैठ जाता है
एंड बिकॉज ऑफ व्हाट गोज इन द बैक ऑफ योर माइंड, वो चीज़ बहुत टाइम तक चलती रहती है। नाउ जब वो चीज़ ओवररन हो जाती है, जैसे जिस तरह से बांध के अंदर पानी भर गया है, बाहर आना ही है, सो उस सिचुएशन में इट नीड्स दैट एक्सप्रेशन, और वही एक्सप्रेशन जो है, इट हैज बीन गिवन अ टूल, लैंग्वेज एंड आर्ट। एंड फाइनली एजुकेशन इज टू पास द कल्चरल नॉलेज अक्रॉस जनरेशन। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जो फिशिंग इन ट्रोब्रियन आइलैंड। सो जैसे इसका जो एक कल्चरल प्रैक्टिस है, अब इसके तीनों नीड्स हैं। फर्स्ट, इसका प्राइमरी पर्पस है दैट इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। देन इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि फिशिंग इट इज ऑर्गेनाइज बाय किन ग्रुप्स, फिर उसमें सोशल रूल्स भी होते हैं, रिचुअल्स भी होता है, लेबर डिवीजन होता है, अ काइंड ऑफ सॉलिडारिटी, इंस्टीट्यूशनल सॉलिडारिटी। एंड फाइनली इंटीग्रेटिव नीड, कि जाने से पहले दे परफॉर्म रिचुअल्स एंड मैजिकल स्पेल्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेथोडोलॉजी। सो ये तो देखा ही है कि Malinowski was the father of fieldwork anthropology, and he introduced this participant observation. So participant observation, as the name says it, कि you live among people, and then by living with them as one of them, you understand them, you learn their language, you act like them, and then you write about them, you understand, you observe them. So this kind of observation, or this kind of ethnographic activity, it requires direct engagement. So it's one kind of immersive fieldwork. ये टर्म आप याद रखिए, immersive fieldwork means you need to exist, you need to live among those people as one of them. So उससे क्या होगा कि जो जो अगेन ये जो वर्ड, ये जो फ्रेज है, इम्पॉन्डरबिलिया ऑफ एक्चुअल लाइफ, जो टाइनी डिटेल्स जो हैं, जो आपको समझ में नहीं आती, वो आपको समझ में आया, यू विल गेट द रिदम ऑफ लाइफ, एंड दैट्स व्हाट makes us, because since our consciousness is fluid, and fluid it is always wavy in nature, fluid works in waves, जैसे जो समंदर की लहरें होती है, and waves have the crest and troughs, and in order to sail through it you must get the rhythm. यही बेसिक है हर एक लाइफ की चीज का जो है अल्टीमेट, जो जो इवन कह सकते हैं किसी भी आर्ट को मास्टर करने का एक ही ये पैरामीटर है, यू गेट द रिदम। और इवन जो अभी आपको सिंबॉलिक वर्ल्ड में बताया था कि टू टेक द शेप ऑफ एनी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, वो भी सिमिलर है, दैट यू मस्ट नो द रिदम। सो वो उसी से होगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फिर ये की फीचर्स हैं, फर्स्ट इमर्शन, विच मीन्स लिविंग इन द कम्युनिटी फॉर लॉन्ग पीरियड, learn their language, participate in their daily lives, then record everything, each minute detail, each gesture, each articulation, सब कुछ. And finally, this one, empathetic understanding. Empathy means you keep your subjectivity out. Be objective. Objectivity तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी तो आएगी, थोड़ा बहुत बायस तो आएगा, लेकिन दैट बायस कैन ऑल्सो बी करेक्टेड इफ यू ब्रिंग इन एम्पैथी. सिंपल थिंग, एम्पैथी मीन्स टू अंडरस्टैंड समवन्स इमोशंस. तो जिसको आज जो यूपीएससी जो है, इट इट हैज गिवन इट different terminology, emotional intelligence. So if you are emotionally intelligent, and if you try to feel others, so in that sense you will correct your own biases. Subjectivity जो है कम करने की कोशिश की जाएगी, and then you will try to bring in objectivity. So that's what this cultural relativism और amic approach, और इसका opposite होता है ethic approach. Ethic approach means to view something from outside, and amic approach to view any culture from inside. फिर अब केस स्टडीज देखते हैं. तो कूला एक्सचेंज है, तो इसमें अब सब बता दिया आपको कि दो कमोडिटीज होती है,
Solava and Wali, and then they exchange in clockwise and counterclockwise patterns, where before making the journey, magic spells, rituals, all of them they were observed, and then it brings in honor, prestige, and political influence. Also employs diplomacy, personal rapport building, partnership building, etc. Fair, the second case study from Shilluk of Sudan. So Shilluk, they are Nilotic people. Nilotic means those people from Sudan, Uganda जो नाइल नदी के आसपास रहते हैं. सो इस इस स्टडी में यहाँ भी आपको सिंबॉलिक वर्ड का बहुत कुछ पता चलेगा. सो द Shilluk king Wrath, he is a considered semi divine and sacred thing. तो जो भी Shilluk king है, he is more like a symbol. Now, उस because of that sacredness, because of his semi divinity, he is kept separate from people. His movement, speech, diet, and contact with common people, all of them, they are controlled. So उसमें यही है कि that symbolic world or that symbol need to be protected. So जैसे उस वक्त ये सिंबल हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम में जो नेशनल एंथम है, जो फ्लैग जो है, ये क्या है? ये एक तरह से that insignia is a symbol of India. It represent India. Similarly, जो heads of state जो है, जैसे जो इंडियन प्रेसिडेंट है, तो वो है क्या? दे आर सिंबल. इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ऑल ऑफ देम, दे आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट इंडिया, सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कंट्री. सो यही सेम जो है ये शिलू किंग का भी है, बिकॉज ऑफ सेमी डिवाइन एंड सेक्रेड स्टेटस. सो ऑल ऑफ अदर एक्टिविटीज, स्पेशली हर वो चीज जो दैट कंसर्न विद कॉमन पीपल, वो अवॉइड की जाती है, वो रेस्ट्रिक्ट की जाती है, ताकि जो 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 सिंबॉलिक ऑर्डर है इट कैन बी मेंटेन. सो उसका जो मेन फंक्शन है उसके पीछे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता, आखिर क्यों जो जो रैट है, जो शिलू किंग है, why he is kept aloof, why he is kept detached from day to day life. क्योंकि वो जो सिंबल है that that view people together, that can promote political and social stability and prevent conflict, वो चीज बनाए रखनी जरूरी है. फिर the third case study about magic and fishing rituals in the Andaman Islanders. So यहाँ भी जो फिशिंग प्रैक्टिसेस जो है, सो उसमें अलग अलग तरह की रिचुअल्स हैं. जैसे व्हेन दे आर फिशिंग इन शैलो वाटर्स, सो मैजिक ज़्यादा नहीं होता, बट व्हेन दे वेंचर डीप एंड डेंजरस सीज, जब आगे खतरा है, देन दे परफॉर्म इलेबोरेट रिचुअल्स एंड सेरेमनीज. सो उसके पीछे का जो फंक्शन है, जो आइडिया है कि when they are up against a threat but still they want to make the journey, then they need that symbolic leap of faith. They need that placebo that can propel people to act. क्योंकि अगर people do not act against the tide, then survival could not be ensured. So ये चीज जो जो चीज है, सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन, इट हैज बीन देयर सिंस द टाइम ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेसिस. कि यही अगर शुरू में जो ये कह सकते हैं हमारे एंसेस्टर जो है, वो अगर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में ही रहते, या होमो इरेक्टस जो है, ही इफ ही डिड नॉट मेक दैट ग्लोबल जर्नी, या फिर होमो हैबिलिस जो है, ही डिड नॉट क्रिएट द फर्स्ट टूल्स. सो अगर ये सब जो ब्रेव एक्ट्स अगर नहीं किए होते, तो शायद हम लोग जो है आज इस तरह से नहीं पढ़ रहे होते. सो द होल सागा, इट इज क्वाइट heroic, and that heroism, that bravery, that courage, पर्सनल तो था ही, साथ में जब कम्युनल स्ट्रेंथ चाहिए, जब
जब नियंडरटल्स की बात कर सकते हैं या आर्किक होमोसेपियंस व्हेन दे हंटेड लार्ज मैमथ्स, जो समझ रहे हैं ना, आज के हाथी से भी 4-5 गुना बड़े बड़े जो एनिमल्स जो हैं, अब उनको एक साथ हंट करना है, सो उसमें भी कोऑपरेटिव हंटिंग होती थी, एंड देन इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ डेंजर, क्योंकि आज के हाथी के सामने ही हम लोग compete नहीं कर पाते, उस टाइम के मैमथ के सामने कैसे compete कर सकते। सो उसके लिए सम सिंबॉलिक सिंबॉलिज्म और सम सिंबल्स केम टू रेस्क्यू, और ये सब सिंबल्स, ये इलेबोरेट रिचुअल्स जो हैं, सेरेमनीज जो हैं, ये सब होती थी। इन शॉर्ट, दिस symbolic world, these rituals, they provided that leap of faith, they provided the courage when it was not there. फिर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट, he is criticized that he ignored historical processes, the historical development, कि हर जो कल्चर जो है, बिकॉज जैसे उसने बहुत सारी स्टडीज की, मैंने यहाँ पे 3 केस स्टडी दी है, जो आप देख सकते हैं, तीनों अलग अलग, ट्रोब्रियन आइलैंड, शिलूक्स एंड अंडमान आइलैंड। इन तीनों के अलावा, इन तीनों में जो मैलिनॉप्स की जो है, ही ऑब्जर्व व्हाट वाज देयर in the time he wrote those ethnographic account around 1930s. So उस टाइम पे क्या था वही लिखा, बट हिस्टोरिकली वो सोसाइटीज जो है, वो कल्चर कैसे डेवलप हुए, वो नहीं, उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया, उसके बारे में नहीं लिखा। सो हिस्टोरिकल वन इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। देन he said, you know, he talked about, he overemphasized harmony in any particular society, कि सोसाइटी जो है, दे आर स्टेबल एंड वेल इंटीग्रेटेड, बट ही ओवरलुक inequality, power struggle, gender conflict, class divisions, whichever which existed. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों में, तीनों सोसाइटी में, he took up broader and a different tone, a different perspective. So ये सब जो चीजें हैं, जो रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, ये रियल वर्ल्ड फ्रिक्शंस जो हैं, ये उसने नहीं बताए। देन he centered on individual needs, whereas society जो है, cultures जो हैं, they function at collective level. So इसके बारे में नहीं बताया। And then he underplayed symbolism. So one more thing that he did not bring in properly, that is, he missed the deeper symbolic dimensions of culture. So because he emphasized on need, क्योंकि जो थर्ड, जो इंटीग्रेटिव नीड्स हैं, जो मैंने आपको सिंबॉलिक वर्ल्ड के बारे में बताया, सो ही टर्म दैट एज वन ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल टू सर्वाइव, टू अडेप्ट, टू फॉर एनी कम्युनिटी टू स्टे स्टेबल। लेकिन हर एक कल्चर जो है, इट इन इटसेल्फ possess that extra dimension of symbolism, जो हमारी प्रेजेंट सोसाइटी में भी जो है, जो सिंबॉलिक वर्ल्ड में बार बार कह रहा हूँ। सो ये है कि ही डिड नॉट गिव दैट मच इम्फेसिस, बताया तो है लेकिन अच्छा इम्फेसिस नहीं दिया। फाइनली PYQ इनसाइट्स में ये देखिए कि फर्स्ट जो क्वेश्चंस जो होते हैं अबाउट फंक्शनलिस्ट थियरी एंड हाउ इट एक्सप्लेन कल्चर, जैसे the contribution of Malinowski in the development of functionalism, then his approach to the study of culture, then basic tenets, and then his principles and theory of needs, then how he classifies human needs, जो needs के question simple हैं, then contrast between एक जितने भी schools हैं, different anthropological theory उनसे, फिर methodology के बारे में है, that how his participant observation या immersive fieldwork, it revolutionized anthropological methods, and finally colouring and criticism. So ये questions हैं, PDF आपको मिल जाएगी। और भी कोई questions आता है, just shoot your comments. So this is it. Thank you very much.